قربانی کا میٹ کا، اور اس کے ساتھ ہم نے آلو ایڈ کیا. دیکھیں مزیدار والے کوفتے بنے ہیں. دیکھیں بسم اللہ کرتے ہوئے پروسیں گے. واو سو ٹیسٹی. یہ ایک الگ سے وہ ہے کہ دبئی کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے، مزدور یہی سے ملتا ہے. ہاں پھر لیبر ویزا ملنا آسانی سے مل جاتا ہے دبئی کے لیے. تم کام کرنے جاؤ، میں نہیں چاہیے. تو کتنا کمایا ہوتا تم نے؟ 16 lakhs. مجھے لگ رہا ہے کہ میں تمہیں پیسے دوں اور 10 کا کم نہیں جاؤں. مذاق کر رہے بھائی. اس کا ماں مر گیا، اس کا باپ مر گیا، اس کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اور میں نے اس کو چھٹے مار دیا. اوہ نو، مجھے اس کو وہاں معلوم کرنا ہے. اب جو کنگ بولتے نا ویسے ہی. اور اس کی بیوی بھی رات میں گزر. جاؤ نا ادھر. ربڑ نہیں باندھا. پھر اس نے کیا کہا تھا؟ کس نے؟ اچھا اچھا ایکشن کرو نا. اس نے میں اب تو جیمز کا ایڈ بولوں گی. یہ کھائیے اور منہ میٹھا کیجیے، یہ کھائیے منہ میٹھا کیجیے. یہ آپ کو ایک دکھیں گے اور اس کے اندر آپ کو دکھیں گے بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے ویورز، سب خیر وافیت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں میں بھی خیر وافیت سے ہوں. اور آج میرے ویڈیو کی آغاز میری چھوٹی سے لینے جا رہی ہوں. چھوٹی ایسی ہے نا کہ چھوٹی مطلب اتنی بچی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا جو سوچ سمجھ ہے نا بہت ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. یہ اچھی باتیں کو نا بہت اچھی طرح سے نا مطلب کرتی بھی ہے اور پریزنٹ بھی کرتی ہے. اور کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ہم تھوڑی ہلکے پھلکے سے میں نے کچھ اپلوڈ کیے تھے، لیکن قسم سے مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے. مطلب ایسے مطلب کہتے ہیں نا کہ کیا کہوں، ہمارے اپنے خاندان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بیٹا بیٹیوں کا جو داماد ہے، بہو ہے، مطلب نان مسلمس ہیں، اور ان کے ڈریسنگ سینس وغیرہ دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور کچھ خاندان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگ مطلب کہنے کے لیے دنیاوی نظر سے بہت باہر ابراڈ میں رہتے ہیں، لیکن ان کے بچے سب نان مسلمس کے ساتھ لڑکوں نے شادی کر کے، اور 32 سال کی عمر میں بھی نماز کا مطلب نماز کس طرح پڑھنا ہے وہ تک بھی ان کو نہیں پتہ ہے. تو بہت ہی افسوس مجھے ہو رہی ہے. میری افسوس کا جو وجہ ہے یہ سب کچھ ہے جو بہت ہی افسوسناک ہے. جو بچے ایسے اپنے مطلب کیا کہوں، ایسے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور بیوہ ہونے کے باوجود بھی کچھ عورتیں مطلب پینٹ شرٹ پہننا، میک اپ فل کرنا، پھر ڈپریشن کا نام دینا، دس از ناٹ گڈ. پھر اسی طرح سے بیوہ عورت مطلب شوہر نہ ہونے کے بعد اب وہ لوگ پھر بھی بازار گھومتے رہنا، مطلب بہت ساری وجوہات ہیں. اور کچھ لوگ انڈائریکٹلی ان کو مدد بھی بہت آتے ہیں اور ان کے مطلب گزر بسر ہو رہے ہیں. اور جو لوگ عزت سے رہ رہے ہیں وہ لوگ مطلب ہے نا
लाइफ में कौन फरिश्ता है, कौन बेदाग है, सब तो दागदार ही है। गुनाह तो हम सब से होते हैं, और वो गुनाह जो इंडिविजुअल हो, अपना गुनाह, वो बेहतर है। अल्लाह से गुनाह का तौबा इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। और वो गुनाह जो पीठ पीछे लोगों के बुराई करते रहे और अपने हिसाब से सब किसी को छूट दे, किसी को जगड़ ले, ये करने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं और दिल दुखाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो गुमनाम अगर कोई रहे, गुमनाम मतलब भी किसी के साथ ताल्लुकात ना रखे, अपने जगह पे अच्छे से रह रहे हो, लेकिन कुछ उनका मतलब पता नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर वो उस वक़्त वो जो दूसरे अगेंस्ट लोग हैं वो बहुत खुश होते हैं लोगों को कहने के लिए, हमें तो पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, नहीं पता है किधर होते हो किधर नहीं होते हैं, फलाना जगह पे होते हैं, धमाके जगह पे होते, ये सब वो उनको कहना बहुत अच्छा लगता है। आज से 30-35 साल पहले मतलब कोई अगर बड़ा भाई खो जाता है तो उस टाइम पे सही है, नहीं मिला, वो कहाँ खो गए नहीं मिला। बाद में फिर मिलने के बाद उसके ज़ुरियात उनको फिर नज़रअंदाज करना, यही इंसानी फितरत है। और आज कुछ लोगों को मतलब बदनाम करना चाह के नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल रोज़ का वो लोग दिखते हैं। अब ये कहने के लिए उनके पास रहा नहीं कि हमें पता नहीं है, मतलब पता तो सब कुछ है, लेकिन हसद का ज़ोर है। तो इसीलिए हसद जहाँ होते हैं ना, फिर लोग अपने पास बुलाते भी हैं, दूर दराज तक आ जाओ, क्योंकि जो दिखते हैं वो सामने दिखते भी है या नहीं देखने के लिए, और सामने भी बहुत रॉयल दिखते हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं होती है ना। अल्लाह को तो पता है ना, फिर उनको कुछ ना कुछ बहाना बना के, मतलब इतने घटिया बहाना बना के, इतना चेहरे का चमड़ा उनके पास नहीं होते हैं कि फिर सबको एक ही साथ में रफ़ा दफ़ा कर देते हैं। ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में, ऐसे सोच वाले भी होते हैं और ऐसे गट्स भी होते हैं उनके पास ये सब कर गुज़रने के लिए। तो लिहाजा मेरे पास तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और मैं खुल के अभी नहीं कहूँगी, पर्दे में रहने दो। सच में पर्दे में रहने देना चाहिए। कुछ बात ऐसी होती है ना जो बहुत ही हैरत अंगेज़ और बहुत ही गिरी हुई और बहुत ही मतलब ना वो होते हैं, मतलब क्या कहूँ, रहने दो पर्दे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आखिरत के दिन पर्दे में ही रख के लोगों से हिसाब किताब लेंगे, लेकिन उनको फिर पर्दे में नहीं रखेंगे जो खुद को चालाक समझता हो। गुनाह कर के फिर उसके बाद तो सोचेंगे कि हमारा गुनाह मग़फ़िरत हो जाएंगे। नहीं, गुनाह मग़फ़िरत उनके होंगे जो दिल से तौबा करता और उस तौबे पे टिक के रहता हो, तो उनके तौबा वाकई में कबूल होंगे। और किसी को आइंदा से फिर दिल नहीं दुखाता हो, कुछ ऐसे हरकत नहीं करते हो कि किसी को ठेस पहुँचे, किसी को बुरा लगे, मतलब किसी को मतलब ना दिल दुखाने का कसर नहीं छोड़े। हमारी लाइफ तो ना बहुत ही वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है। यूट्यूब पे मैं तो कभी नहीं कहती हूँ मुझे ये करो वो करो, क्योंकि मेरा यूट्यूब इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से फल फूलेंगे और आगे मैं इंशाल्लाह अपने ज़िंदगी का हर पहलू में दिखाने की कोशिश करूँगी। लेकिन वहाँ पे ना नज़र लगने की ना बहुत देर अंदेशा होता है, फिर इसीलिए ना कभी कभार ना कुछ बोलना भी पड़ता है उनको खुश रखने के लिए। अगर मैं कहूँ मैं बहुत दुखी हूँ, अंदर से खुश होते होंगे, लेकिन मेरी जो ज़ाहिर से देख रहे हैं उसे देख करके उनको बहुत ज़्यादा हसद होते होंगे, क्योंकि मेरी लाइफ में हसद की कोई कमी नहीं रही है। हर तरफ से हसद करने वालों की कोई कमी नहीं रही है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हसद करने वाले और ग़ीबत करने वालों में से नहीं बनाए। मेरी बेटियां घरेलू है, घर पर ही होती है और इतनी मासूम है ना, कसम से ये लोग ना कभी भी ना उस टाइप की औरत नहीं बन सकेंगे। बच्चे के माँ बनने के बाद भी ना ये लोग ना बच्चे ही रहेंगे, क्योंकि हमारे घर में ग़ीबत नहीं है, हमारे घर में किसी के ना बुराई नहीं है, हम जो है सामने है, हम पीठ पीछे किसी का ना बात नहीं रखते हैं। इसीलिए ना इनकी मासूमियत कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब यहाँ दो कुछ कर रहे हैं, एक किचन में है, मतलब इतना मेरा लाइफ ब्यूटीफुल है ना, उस पर नज़र न लग जाए इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह से हमेशा यही मैं दुआ करती हूँ कि मुझे नज़र न लग जाए।
और इसीलिए कभी कभार ना किसी को खुश करने के लिए बहुत कहने को दिल करता है ताकि वो लोग खुश रहें। क्योंकि आज तो ऐसा होता है ना कि बहन खुश है, अच्छा है, तो नहीं खुश होते हैं। मेरी लाइफ में तो मेरे मतलब हिस्से में यही है, मुझे दुख होना फिर वो लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन वो होता नहीं है खुदा के फजल से। बाकी अल्लाह को सब का पता है, अल्लाह को ही पता है ना। बाकी अपना अपना लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग अपना थॉट्स है, अपने बात है, वो अपने पास है। और कल ही मेरे बच्चे का भी थोड़ा सा नाच भी लिया। वो नाच ऐसे वल्गर नहीं होते। आज तो कोई किसी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं, सब के सब आप फेसबुक पर जाएंगे तो मेरी उम्र से भी बड़ी बड़ी लोग मतलब लेगिंग्स पहन के, मतलब हिजाब सिर पे पहन के नीचे लेगिंग पहनना कितनी बड़ी अजीब भी लगते हैं। लेकिन माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने कभी लेगिंग्स या स्लीवलेस या फिर शॉर्ट्स ऐसे नहीं पहने हैं लाइफ में, तो कोई किसी को उंगली नहीं उठा सकते। फिर कल मसली जी फरमा रहे थे कि तुम अपनी बेटी को नचवा रहे हो। मतलब कौन नचवाते हैं? ईद के दिन हमने थोड़ी सी सेलिब्रेट की, उसमें छोटी ने थोड़ी सी अपनी एक्शन दिखाई। ड्रेस टर्की से आए हुए थे तो वो पहना तो वो गॉर्जियस लग रही थी, तो इस पे मुद्दा बना के बहुत लंबी चौड़ी मुझे मैसेज भेजी थी। नहीं कोई बात नहीं, उनके सही ना सही कहने से मैं गलत नहीं हो जाऊंगी। मेरे साथ क्या गुज़र रहे हैं, क्या गुज़रा है, वो मेरे रब जानते हैं। बाकी ये नसीब तो है नहीं किसी को कि एकजुट हो के ईद पर अच्छे से विश करे, है ना, ये सब तो है नहीं। बाकी मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह से इल्तिजा है और हिदायत के नसीब हो जो कनाडा में रहने वाले लोग हैं, ताइवान में रहने वाले लोग हैं, जहाँ कहीं अब्रॉड में रह के गुनाह कर रहे हो, उन सब को हिदायत हो। और मुझे तो कनाडा वाली की बहुत फ़िक्र है, उनके बच्चों की, बीवियाँ नॉन मुस्लिम है, लड़की का शौहर क्रिश्चियन है, और ताइवान वाली का सब के सब चाइनीज़ नॉन मुस्लिम बहुएँ हैं, उनको नमाज के तरीका नहीं आता है। तो ये ज़ुर्रियत के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब अफसोस की बात है। और उस औरत को भी धकेला गया यहाँ से, वरना फिर मतलब इन चीज़ों पे उनका दिमाग नहीं जाता है। किसी को अब्रॉड में मतलब इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, यहाँ नहीं दिखते हैं तो उसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, अल्लाह की नज़र तो हर तरफ है ना। तो इसीलिए वो सब बड़े बड़े गुनाह हैं। और कोई तो बिदत इतना शिरक कर रहे होते हैं, इतना रियाकारी लोग होते हैं, उन लोगों के साथ कुछ नहीं बोल सकते हैं। और कुछ लोग तो पीरों के पास जा करके पैसा इतना पीरों पे लुटा करके, इतना दूर दराज कलकत्ता से कहाँ पीरों के बात सुन के यहाँ पे जिन्नातों का पर फैला है, इसके जान पे बान है, फला है, ढमा है। यार हमारे माँ बाप ने तो कभी ऐसा पीर फ़कीर वालों का बात सुना ही नहीं। तो ऐसे जुज़ वालों की फ़िक्रमंद होनी चाहिए। और बाकी बहुत सारी बातें कहने के लिए बहुत ही, लेकिन छोड़ो यार, क्या है ना। मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे तो समझदार लोग तो मेरी वीडियो देखकर समझ ही जाएंगे कि, है ना। और बाकी में जो किसी को कुछ कहना चाहे तो वो कह के भी बेज़रर है, क्योंकि उनके बात में दम नहीं होते हैं। तो ये सब मुझे टेंशन देने के लिए, मैं टेंशन क्यों हो जाऊँ। माशाल्लाह से मुझे शौहर बहुत प्यार करते हैं और बेटियाँ बहुत प्यार करते हैं, मुझे सब बहुत इज़्ज़त करते हैं। मैं अपने लाइफ को बहुत ही पीसफुली रन करती हूँ, सबको देती हूँ, लेती कुछ भी नहीं हूँ किसी से। आज तक सबको खिलाया पिलाया है, दमदार, वो भी हसद के मारे बात में फिर ऐसे बोलते हैं, तूने ये खिलाया तो तू अपने आप को बहुत कुछ समझता है। मैंने कब कहा मैं कुछ समझती हूँ? उनको खुद लगा है तो वही खुद बकते हैं वहाँ से। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आइए, बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके साथ रिश्ता रखेंगे आप, बहुत फिर बाद में वो भी फेट हो जाते हैं। वो सब खुदा को कौन सा मुंह दिखाएंगे? मुझे तो इनके ईमान पे हंसी आती है। या तो प्यार नहीं जताओ या तो कुछ नहीं जताओ, अगर जताओ तो उसका एक एंडिंग ना एवर एंडिंग होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। आज तक मैंने किसी को अपने साथ लिया भी हो अपने गाड़ी में तो उसको पहले सीट पे रख के, इज़्ज़त दे के पहले सीट पे रख के, नहीं कुछ नहीं है, पहले रखा है, खुद पीछे बैठ के। सारे सितम मैं खुद सहती हूँ, दूसरों को मैं अच्छा ही करती हूँ। कुछ भी अच्छा खाने का हो उनको पेश करती थी, खुद बाद में खाती थी।
कुछ भी चीज़ हो अच्छा सा मुझे लगता था कि नहीं ये उनको अच्छा लगेंगे, मैं उनको देती थी। तो यही मेरी फितरत है। अभी भी मेरा ख़्याल यही है कि मैं सबको अच्छा कर गुज़रूँ, लेकिन मुझे उनसे दूर रखे जो मुनाफिकीन हो, जो गैबती हो, जो शिरक वाले हो, जो हसद वाले हो, जो घिना वाले हो और जो नाइंसाफ़ करता हो। सबसे बड़ी बात, एक उम्र दराज होने के बावजूद भी उसके अंदर अभी तक इंसाफ नहीं आया हो, तो फिर वो सबसे बदकिस्मत है। और वैसे लोगों के साथ मुझे अल्लाह कभी ना जुड़े, मैं दूर ही रहूं ऐसे लोगों से, और अल्लाह मुझे उनसे कोसों कोसों दूर रखे। यही मेरी अल्लाह से दुआ है। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अभी ये मेरे छोटा सा वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ, और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं देख रहे होंगे उन सब को मैं दिल से कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत मैं आप सबसे प्यार करती हूँ, और आप सबको सलाम, दुआ, प्यार, अगर जो भी। लेकिन मैं अपनी वीडियो में ऐसा कुछ काम नहीं करूँगी जैसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो, जैसे बहुत सारे अजीब अजीब हरकतें। कोई तो अपना लाइफ दिखाना चाह के भी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो लोगों का अलग लिविंग स्टैंडर्ड है। मेरा बहुत ही सिंपल, स्वीट एंड ब्यूटीफुल सा है। मैं सिंप्लिसिटी पे बिलीव भी करती हूँ। मैं गांव के घर में भी जाती हूँ। मैं गांव, अभी भी मैं गांव में ही हूँ, मतलब जहाँ भी, मुझे गांव का लाइफस्टाइल भी पसंद है बहुत। लेकिन हमारा जो लिविंग है वो अलग है, वो खुद ब खुद हो जाता है। दिस इज़ अल्लाह गिफ्टेड, और नो बडी कैन कॉपी मी। मेरे जैसा कॉपी कर भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। सो मेरी लाइफ ब्यूटीफुल है। मुझे दुख देने वाले कुछ औरतें हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा दिल दुखाते हैं, बहुत ज़्यादा। और ऐसे ऐसे वॉइस मैसेज, मैं व्हाट्सएप पे उनको ब्लॉक नहीं किया है मैंने चाहा कि इनको हिदायत हो जाए और प्यार भरी अच्छी वाली बात मैसेज करेंगे। लेकिन जब भी मैसेज करते हैं बहुत ही तीखी तीखी अल्फाज में मैसेज करते हैं। कोई तो फ़ोन भी करते हैं लेकिन उसमें भी कोई और, मैं लद्दाख की हूँ बोल के ऐसा प्रिटेंड करके अपने आप का नाम प्रेजेंट कर नहीं सकते हैं। आखिर क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ? तो कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहे हैं। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हिदायत करे और सबको हिदायत हो, यही मेरी दुआ है अल्लाह से। और बाकी बस कभी कभी कहना पड़ता है। ओके देन, अल्लाह हाफिज़। अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, फिर इंशाल्लाह सब लोगों को हिदायत नसीब हो। सच में हिदायत की इनको सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मैसेज आप लोगों को सुना नहीं सकती हूँ, सुनाएंगे तो आप लोग सब हैरान हो जाओगे कि मैसेज के अल्फाज कैसे होते हैं और कहने का तरीका। मुझे लगता है इस तरह के कहने के तरीके पे किसी को हिदायत नसीब नहीं होंगी। अगर ये लोग किसी को अगर कुछ बात कहना चाहे ना, सामने वाले को ना हिदायत नसीब नहीं होंगे, ये मुझे पूरा पक्का पता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब करे, सबको नेक आमाल करने की तौफीक नसीब अदा करे। अगर नेक आमाल कर सके फिर इस दुनिया में अगर ज़िंदा रहते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ कुछ लोग हिपोक्रेसी होते, कुछ पीछे होते हैं, फ़ोन के पीछे एक आगे बोल रहा होता है। सो दिस ऑल पीपल्स आर हिपोक्रेसी एंड आई रियली फील सैड अबाउट देम एंड दे हर्ट मी बट आई डोंट हर्ट देम एवर। मैंने फिर उस मैसेजों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने उधर ही ब्लॉक कर दिया। तो फिर मेरा मतलब ये है कि मैं क्या कर रही हूँ ये सबको पता है ना। मेरी लाइफ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, और यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है नौज़ बिल्ला कि बिद्दीन हो गए हो, या फिर ऐसा कि एकदम मेरे घर में नमाज कुरान ये सब होता है। और जो लोगों के पास नहीं होता है वो उनकी बदकिस्मती है, बहुत अफसोस के साथ। और जो भी हो अब्रॉड में मेरे रिश्तेदार, उनको हिदायत हो, उनके बहुओं को सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक हो, कम से कम तौफीक नहीं होंगे। और जहाँ तहाँ भी हो माँ को फर्स्ट ऑफ ऑल हिदायत हो, क्योंकि माँ अगर सुलझी हुई हो तो दैट इज़ गुड, है ना। बाकी छोटी मोटी गुनाह होती रहेंगे, लेकिन गैबत जैसी और मुनाफिक वाली जैसी शर से हमें अल्लाह बचाए हर हमेशा।
باقی بس آج فیس بک پہ آپ جائیے، ایسے ایسے نذرانے دکھنے کو ملیں گے جن کو لگتا ہوگا کہ ہمارا آئی ڈی ان کو پتہ ہی نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ مل جاتا ہے، کونے کونے سے مل جاتا ہے، لیکن اپنا اپنا سوچ ہے نا، کیوں پوائنٹ آؤٹ کرے؟ اپنا گناہ ہے پھر بھی ان کا، انہوں نے کسی کو غیبت نہیں کیا ہو تو بڑے گناہ بھی کیے ہو تو پھر وہ اپنا ہی گناہ ہے، تو وہ اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ تم بہت بڑا گناہ جب تک آپ نہیں دیکھو گے۔ میں تو اتنا کچھ دیکھتے آ رہی ہوں، دیکھا بھی اپنے آنکھوں سے، آنکھوں دیکھا حال، اتنا میں مایوس ہو گئی ان کے لائف کو دیکھ کے، لیکن کیا کروں، ہدایت نصیب نہیں ہے ان کو، پھر بھی اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ اوکے دین، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔